Following the Supreme Court's directions to the Punjab government to put an end to the practice of stubble burning in order to address the issue of air pollution in the Delhi NCR region, the civil and police administration has swung into action to keep a strict vigil on farm fire hotspots. Chief Secretary Anurag Verma has issued an order that prompts disciplinary action which would be taken against an SHO concerned if stubble burning is witnessed in his or her jurisdiction. Furthermore, he has directed deputy commissioners and police chiefs of all districts in the state for compliance of the court's directions in letter and in spirit. Meanwhile, burning continues in Punjab as satellite images show more fires in Punjab, and not just satellite images, we are having visuals on our screens that you can see. Fires are raging across fields in Punjab. It's a lot more compared to Haryana. Let's in fact take a look at some of these images. I'll take you through what exactly is taking place in Punjab and what is taking place in Haryana, how Haryana has in fact managed to successfully curb the amount of farm fires. On my screens is an image from the 1st of November. Can we pause and play it according to while I'm speaking? Thank you so much. So yes, here it's 1st of November. You can see there are a host of these red dots that are representing the farm fires. Right here is Punjab and here is Haryana. You can see the red dots, that is the farm fires, are concentrated over here throughout the state. Meanwhile, it's also taking place in Haryana. We've of course moved on to the 2nd November. A similar such a scenario of course existing. Farm fires are still raging in Punjab. In Haryana, it's more towards the northern region. Similar scenarios even on the 3rd of November. Of course, these fires, the smoke that rises up in the air is carried forth to the national capital. 4th November showcases a similar scenario. 5th November is particularly worse because some of the fires have increased even in Haryana itself. But let's take a look at the 6th, where things become a little bit better in both the states. Meanwhile, let's also in fact take a look at the 7th. If we have that, yes, there you have it on your screens. Things have aggravated once again. You can of course see the entire state of Punjab is lined up with red dots, and Haryana too, to a considerable extent, to the northern portion and central portion, is of course witnessing raging farm fires. But of course, this has impacted the national capital in particular. We are facing a situation that, of course, with smog enveloping the entire national capital region, not just Delhi, but surrounding cities, including Ghaziabad, Noida, Gurugram, and Faridabad. But let's take a look at what is happening in the national capital first. I'm being joined by a host of my colleagues. First up, Arzu Seth, who is live with us from India Gate itself. Arzu, we've seen visuals from India Gate over the last 1 week or so. The iconic monument is shrouded under smog every single day. There are morning joggers who face problems. There are people around for evening strolls who have complained about irritation in their throats and burning eyes. Can you show our viewers how it's like today? Can you talk to some people if they are around you? Over to you. Well, there is one thing that is refusing to improve in the national capital and the Delhi NCR, and that is air pollution. Still, the AQI in the national capital continues to be recorded in the severe category. Today, the overall AQI of the Delhi is more than 440. That comes under the severe category. In fact, if I tell you, the AQI in the Anand Vihar is 332, and in RK Puram it is 453, and in Punjabi Bagh it is 444. And in ITO it is 441. So all these places the AQI is above 400, which comes under the severe category. Right now I am at the India Gate, and I would like to show you the visual from this place. Also you could see the haziness is still continues at this place. Also you could see the smog engulfs in the national capital, and there nothing is visible. If you see the invisibility is present at this place also. In fact the people have said that they have come here to witness the
beautiful places to see India Gate, but they say they are not able to in fact see what is there at these places. As you could see, the haziness in the weather still continues. The people are in fact forced to breathe the toxic air in the national capital. In fact, after the Supreme Court intervention, the measures that the government is taking now is that the app-based taxis, non-Delhi taxis, will not be allowed to enter in the national capital. This is important information for all the viewers that are watching NewsX right now. Also, earlier already the winter vacations has already been announced from the government from 10th November to 18th of November. Also, the government is planning to do cloud sledding that leads to the artificial rain, and also on that particular issue, today the Arvind Kejriwal will be having meet with the IIT Kanpur people. So the government have started, bringing a new initiative to tackle down the pollution in the national capital. As we all know, the rainfall is helpful in curbing the pollution, so that's why the artificial rainfall will be done on 20th of November to deal with the pollution that is continuously increasing in the national capital. Indeed, and speaking about controlling pollution, there are also certain smog towers that have been set up. Incidentally, our colleague Brian is near one of them. Brian, can you tell our viewers where exactly you are? Can you show us the smog tower around the area where you are and take our viewers through what's it like over there? Yeah, as the toxic air, the smog continues to engulf the very national capital. A smog tower was also inaugurated by the Aam Aadmi Party government that was not functional for 2 years until the Supreme Court's verdict came. We are outside the very smog tower, which started functioning following a Supreme Court order. This tower that was initially installed in January 22 was closed down in April, is now operational again. If I show you, these are the fans that is working, and even the Delhi's environment minister also expressed gratitude to the Supreme Court for the directive and also called for the resumption of a pollution study. And excuse me, maintenance work is also underway, including cleaning of equipment and rooms. The fans are also operational, and also the fan speeds are also gradually increasing by time. If I show you the screen, that basically the screen is not working. We've spoken to the officials also earlier. They've said that it's still under technical works and they are trying to make the screen functional. So basically the screen is supposed to show you the exact AQI levels at the national capital, and this maintenance work is going on. And this tower stands over 24 meters high, which was inaugurated by the Chief Minister. And according to the smoke tower data also, this giant purifier that you see here can reduce the air pollution by 70 to 80% within a 50-meter radius, and by 15 to 20% up to 300 meters. And even the officials claim that this very smog tower, which was based in a budget of 23 crore, can purify air up to 1,000 cubic per second. So yes, this is what we needed the most at this time of crisis, where the AQIs continue to engulf the national capital. And finally, the Supreme Court has given a verdict, and the DPCC has resumed the work of this smog tower, which will give out clean air. These fans are now operational, and they are also increasing the speed of the fan, which is also supposed to curb the pollution, curb the air, rising AQI, the rising, the carbon in the air, the dust in the air. So it's basically there to curb the pollution that is engulfing the national capital. Indeed, yes, and Pia, provide some sort of relief to people living in the national capital and the regions around it. And speaking of the regions in and around the national capital, as I have stated earlier, it's not just New Delhi that has been impacted because of the rising levels of pollution. Even other cities and towns around it, including Gurugram, Noida, Greater Noida and Ghaziabad. And joining us from Ghaziabad is my colleague Anil Chaudhary. Anil, over to you. What's the situation like in Ghaziabad at the moment? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज की सिचुएशन की अगर बात करें तो कोई अच्छी नहीं है। आज के हालात और भी ज्यादा खराब हुए हैं गाजियाबाद में। कल की उपेक्षा में, कल की बात करें
कल 300 के पार 300 के पास कई इलाकों का एयर क्वालिटी दर्ज किया गया था, पर आज जो है 400 के पार एक बार फिर पहुंच गया है। दरअसल हमारे दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कौन से क्षेत्र का क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वसुंधरा इलाके का 381 दर्ज किया गया है, इंदिरापुरम का 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, संजय नगर का 360 दर्ज किया गया है, और लोनी जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर 424 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये दमघोटू हवा किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। अब तो लोग भी चाहते हैं, लगातार लोग कह भी रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी कई लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि वाकई ही अब एक्शन का समय आ गया है। सरकारों को ना कि एक दूसरे पर टिप्पणी करने की जरूरत है, लोगों को अब सरकारों को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए और इस पोल्यूशन से कैसे भी निजात दिलाने का काम किया जाना चाहिए। वही एक्शन अब जब सड़कों पर दिखाई देगा और अधिकारी अपने दफ्तर से निकलकर तमाम जो ग्रेड 4 के जो नियम है उनको लागू कराएंगे, तो ही इस पोल्यूशन से कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से एक राहत भरी खबर ये है, वो हम अपने दर्शकों को मैं बता दूं, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है 11 नवंबर तक जो हवाएं हैं वो तेज चल सकती हैं, हल्की बूंदाबांदी पहाड़ी इलाकों में भी हो सकती है, जिसके चलते जो है मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। फिलहाल आज तो गाजियाबाद वासियों को कोई भी राहत नहीं है। वहीं तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा, आज कहीं ना कहीं तस्वीरें विपरीत दिखाई दे रही हैं। स्मोक की चादर जो है जो सड़कों पर आज दिखाई देगी, पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर आज सड़कों पर दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें हम गाजियाबाद की सड़कों से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो वाहन आते हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की इस चादर में ढके हुए आपको दिखाई देंगे, और वाहन स्वामी जो दिखाई दे रहे होंगे वो भी अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए नजर आ रहे होंगे। वाहनों का हेडलाइट का उपयोग लगातार इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि जो विजुअलिटी भी आज कम हुई है। कहीं ना कहीं जब ग्रैप लागू हुआ तो तमाम जो बिल्डिंग्स है, साइट्स हैं, आज उन पर भी काम रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है धुंधली सी, इनके अंदर लगातार काम हो रहा था। आज कहीं ना कहीं आज इन बिल्डिंगों में कोई भी काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आज जो है प्रतिबंध पूर्ण तरीके से अब दिखाई दे रहा है, जमीनी स्तर पर भी काम दिखाई दे रहा है। आखिरकार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, सीधा सीधा आम लोगों की सांसों पर संकट आ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी, गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, विशेषकर बच्चों का खासकर ध्यान रखें, और बुजुर्गों का आप ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। The children and the elderly who are disproportionately affected by this. But also with us on the broadcast is my colleague Mahendra Mahi is joining us from Noida. You've taken us through the situation in Noida an hour ago. Things have become a little better. How is it like at the moment? देखिए, अगर दिल्ली के बाद कोई सबसे ज्यादा शहर प्रदूषण से प्रभावित है तो वो नोएडा है। नोएडा का क्षेत्र है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बीते दिनों तकरीबन 850 के पार पहुंच गया था, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं लगातार जब पोल्यूशन बढ़ता है उसके बाद जो यहाँ के जिला अधिकारी उन्होंने स्कूलों की छुट्टी कर दी है, यानी कक्षा 9 तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सबको ऑनलाइन क्लासेस की बात की गई है। और दूसरी तरफ अगर पोल्यूशन घटता है तो क्लासेस स्टार्ट की जाएगी, नहीं तो ये क्लासेस उनकी छुट्टी और बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ देखिए ग्रैप फोर लागू है पूरे एनसीआर में। जो कंस्ट्रक्शन साइड है, खासकर अगर आप नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन होता था वहां पर रोक लगा दी गई है। मगर अभी भी चोरी छुपे जो बिल्डर्स हैं, जो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वो चोरी छुपे काम कर रहे रात के वक्त, जिससे पॉल्यूशन और बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है, सड़कों पर उतर रहा है और तमाम जगहों पर चेकिंग कर रहा है, देख रहा है कि कौन से बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पर जुर्माना लगा रहा है। मगर बस जुर्माने से काम नहीं चलने वाला। इस वक्त हमें सख्त आदेश, सख्त पालन करवाना होगा, नहीं तो जो स्थिति है बेहद गंभीर हो चुकी है। खासकर देखिए नोएडा के तमाम वो इलाके जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 के पार है, वहां स्थिति बेहद
गंभीर बनी है। वहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की समस्या हो रही है। दूसरी तरफ जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो 10 साल के आसपास के बच्चे, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो जब बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, हमारी कुछ बच्चों से बात हुई थी सुबह में, तो उन्होंने कहा कि हमें जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आंखों में जलन हो रही है और उनके आंख जो है वो लाल आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ देखिए, जो घर में बुजुर्ग है, मतलब जो हमारे घर में बुजुर्ग है जिनकी उम्र है 40-50 साल से ऊपर है, उनको भी काफी समस्या आ रही है। सुबह शाम जो जॉगिंग करने जाते थे, एक्सरसाइज करने जाते थे, फिलहाल उन्होंने बढ़ते पॉल्यूशन के कारण रोक दिया है। और जो जा रहे हैं उनको यही इजाजत दी जाएगी कि आप लोग अभी बाहर ना निकले, क्योंकि डॉक्टर का भी साफ तौर पे कहना है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, मगर आप बाहर जाएंगे तो आपकी तबियत बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ देखिए, जो नोएडा प्राधिकरण है वो सड़कों पे अब वाटर टैंकर का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि जो वो सड़क, जो मुख्य सड़क जहां धूल मिट्टी जमी रहती है, जहाँ कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पड़े रहते हैं, वहां पर पानी का छिड़काव कर रही है। और ऐसे वाटर स्मोक गन, यानी कि जो स्मोक गन होता है वो तो तमाम बिल्डर्स है या तमाम ऐसे चौराहे हैं जहां गाड़ी ज्यादा चलती है, या कह सकते हैं जहां मुख्य बाजार होते हैं, वहां एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तमाम जो रास्ते में पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उन पे पत्तों को साफ किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कमी मिले। मगर इसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी जो पॉल्यूशन है 10 का 10 है, पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है वो अपने 7वें आसमान पर बयानों का दौर जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है वो उसका जो मुख्य कारण है वो उत्तर प्रदेश द्वारा जो पराली जलाई जा रही है, या हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से दिल्ली की जो हवा है वो तो एकदम घोटू। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो पर्यावरण मंत्री थे वो परसों नोएडा के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, दिल्ली के और पंजाब की जो पराली जल रही है उसकी वजह से नोएडा की आबो हवा खराब हो रही है। तो मतलब एक दूसरे पे आरोप इस वक्त भी लगा रहे जब स्थिति इमरजेंसी आपातकाल जैसी, यानी कि जब कोई बाहर निकलता है तो वो सांस लेने में डरता है। उसे लगता है अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे बाहर रहता हूँ और लगातार इनहेल या ऐसी जहरीली हवा करता हूँ तो कहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो आगे की स्थिति क्या होगी। Indeed. Yes. And you've spoken about the politics over this, and you've spoken especially about Haryana. Let's shift our focus to Haryana for a bit. Joining us on the broadcast is my colleague Pradeep Yadav. He's from Manesar. Pradeep, Manesar में क्या स्थिति है अभी? बताना चाहेंगे। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के एक्यूआई लेवल की बात करें तो बीच में जो एक्यूआई लेवल कम हुआ था, लेकिन उसके बाद बीच में अगर हम बात करें 2 दिन पहले जो एक्यूआई लेवल 336 पहुंच गया था, आज वो दोबारा से 399 पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है और लोगों को जो सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो आबो हवा है वो काफी दूषित है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार जो प्रशासन के लिए द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो सब धरातल पर निराधार दिखाई दे रहे हैं। जो अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो कहीं ना कहीं उसमें लगातार जो इजाफा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो घरों से बाहर निकलने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम स्कूली बच्चों की बात करें तो गुरुग्राम जिले में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर हम 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जो आंखों में जलन हो रही है, साथ ही गले में खराश जैसी समस्याओं से जो बच्चों को और साथ ही जो सांस के मरीज है उनको बड़ी समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम जिले में जो अस्पताल है उनमें भी जो सांस के मरीज की बात करें या आंखों की जलन की बात करें या गले की खराश की बात करें, तो इन मरीजों की संख्या लगातार जो गुरुग्राम में जो अस्पताल है उनमें लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो उनके द्वारा भी काफी बार लोगों को अवगत कराया गया है कि अगर घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें, क्योंकि जी, और आपके पीछे भी काफी धूल मिट्टी दिख रही है, क्या आप वो हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे। अगर धूल मिट्टी की बात करें तो जो सड़कों पर जो आबो हवा है वो बिल्कुल खराब है, और जो सड़कों पर जो धुंध है वो इस तरीके से, जो स्मोग, अगर हम धुंध की बात करें तो जो स्मोग है वो सड़कों पर छाया हुआ है। लोगों को सड़कों पर जो स्मोग है उसकी वजह से जो स्मोग की चादर है वो सड़कों पर लगातार छाई हुई है, उसकी कम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को काफी खासी तकलीफ हो रही है। लोगों को जो वाहनों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर जो अपना सफर तय करना पड़ रहा है। जी, और अब हम नोएडा की तरफ वापस देख रहे हैं, स्पेशली ग्रेटर नोएडा, जहां पे our colleague Rajat Kumar is joining us. Over to you. What's it like in Greater Noida at the moment? आज बात की जाए तो राहत है,
जिस तरीके से कल एक्यूआई की बात की जाए तो 500-600 के आसपास था, वही आज हमने चेक किया तो 350-400 के आसपास है, तो राहत है। लेकिन प्रदूषण की जहरीली हवा है वो अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से अक्टूबर माह की शुरुआत हुई कि लगातार प्रदूषण वन बाई वन बढ़ता हुआ जा रहा, तो आज हम कह सकते हैं कि ग्रेड 4 में है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन साइड है जहां पर पूरी तरह से पाबंदी थी, लेकिन वहां पर निर्माण है वो अभी भी चल रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर प्रशासन उतर कर अगर उन कामों को बंद किया जाए तो निश्चित तौर पर जो मौसम है वो सामान्य हो सकता है। लेकिन स्थिति है वो वही है, एक्यूआई में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए या जो निर्माण की बिल्डिंगों क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर हवा अभी भी जहरीली है। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन विभाग को अलर्ट रहना चाहिए, जगह जगह पर जाकर वहां पर चेकिंग करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्रशासन कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। जहां पर तमाम जो मंत्री भी आए थे परसों, उन्होंने बैठक की थी, साफ दिशा निर्देश दिए थे किस तरीके से एक्शन प्लान तैयार करना है। एक्शन प्लान तो कागजों नहीं रह चुका, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी तैयारी नहीं है। अगर जमीनी स्तर पर ये लोग तैयारी करें तो निश्चित तौर पर ग्रेटर नोएडा वो शहर है जो कि एक सुंदरता का शहर है, जिसे अब विदेशों की तरफ से बनाया गया है। तो यहाँ पर तो वातावरण सामान्य होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते आम जनता है वो जहरीली सांस ले रही है। हर रोज हम सुबह सुबह उठते हैं तो सड़कों पर ऐसा लगता है कि कोहरा है, तो कोहरा नहीं वो धुंध है। तो हालांकि अब राहत है, लेकिन जिस तरीके से ग्रेड 4 के बाद कुछ राहत है वो एनसीआर में देखी गई है। अगर यही प्रोटेक्शन और ये जो उल्लंघन करने पर जो कार्रवाई की जा रही है, अगर नियमावली की जाए, अगर एक्शन प्लान मजबूती से उसका पालन कराया जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो हवा है वो काफी सुधार होगा। तो ऐसे में मौसम विभाग का भी मानना है कि कुछ समय में मौसम में बदलाव है वो देखा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति है वो कल के मुकाबले काफी बेहतर है। आज का वातावरण वो काफी साफ है, एक्यूआई में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन को जमीनी स्तर पर उतर कर कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो ग्रेड 4 का उल्लंघन कर रहे हैं, जो नियमों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में अब लोग भी घरों के बाहर निकल रहे हैं। हालांकि लोग घरों के बाहर जब निकलते हैं जब धूप निकल आती है, क्योंकि सुबह सुबह जो कोहरा जो धुंध होती है जिससे उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने घरों में ही कैद रहती है। तो ऐसे में आज राहत है। अगर यही एक्शन प्लान कड़ाई से पालन हुआ तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में काफी बदलाव है वो मौसम में देखा जाएगा। All right, indeed. And speaking about the situation in Uttar Pradesh, also joining us from Agra is my colleague Manoj Chahar. Manoj, how is it like in Agra? It seems to be a tad bit more clear behind you than the rest of our colleagues. Can you take us through what's the situation like on ground? ताजनगरी आगरा में पहले की अपेक्षा अब थोड़ी सी गिरावट या एक्यूआई लेवल में देखी गई है। जिस तरीके से ताजनगरी की जो हवा है जहरीली हो गई थी, दिल्ली एनसीआर के बाद लगातार ताजनगरी आगरा में जो वायु प्रदूषण था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के चलते लगातार उसमें गिरावट देखी गई है। अगर आज की बात करें तो आज का एक्यूआई लेवल है वो करीब 185 और 90 के बीच में बना हुआ है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ की जो संतोषजनक जो एक्यूआई लेवल है वो वहाँ की हवा है वो संतोषजनक दिखाई दे रही है। लेकिन आज भी जो खतरनाक जो स्तर है उसको पार प्रदूषण देखा जा रहा है। लेकिन ताजमहल एक विश्वदायक इमारत है, यहाँ पर तमाम देशी विदेशी पर्यटक आते हैं उसको देखने के लिए। लोग जैसे ही सुबह उसके बैकग्राउंड में मेहता पार्क पे पहुंचते हैं तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण की जो चादर है वो ताजमहल की जो संगमरमरी जो बदन है उस पर पड़ती है, तो ताजमहल की जो दृश्यता है वो कम देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ताजमहल दीदार के लिए जो पर्यटक आए उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है। वो इंतजार करते हैं कि सूरज निकलेगा, सूरज की तेज किरण निकलेगी, उसके बाद जो पॉल्यूशन है उसको हटता हुआ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये धुंध जो है वो छाई हुई है लगातार। जिस तरीके से जो अगर आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन भी लगातार वाटर फॉगिंग करा रहा है। जगह जगह जो निर्देश पारित किए हैं, जो प्रदर्शन था उस पर जो मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश यहाँ दिए हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि त्योहारों का सीजन है, त्योहारों पर लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, तो वहां से जो धूल मिट्टी निकल कर आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो करीब 43 गुना कई इलाकों में बढ़ गई है आगरा के। तो संजय पैलेस की जो अगर आबो हवा की बात करें तो उसका जो स्तर है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो व्यवसायिक हब ताज नगरी का संजय पैलेस इलाका है, तो वहां पर लोगों की आंखों में जलन होने लगती है और जलन के साथ ही अगर कुछ
टाइम अगर लोग वहाँ बिताते हैं तो उनके गले में खराश और खांसी जैसी बीमारियां तनाव पनपने लगती हैं। तो इसको देखते हुए लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है। प्रशासन दिशा निर्देश दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी है आज सभी से अपील कर रहा है कि वो मास्क पहनकर बाहर निकले और जो पॉल्यूशन है उसको कम कराएं, क्योंकि ताजनगरी आगरा में कूड़ा जलाने के मामले हैं वो सामने आते रहे। जो एनजीटी और सुप्रीम की प्रतिबद्धता के बाद भी ताजनगरी आगरा में जगह जगह जो एनसीआर दिल्ली एनसीआर में जो जगह जगह पॉल्यूशन मीटर लगाए गए हैं जो नापने के लिए, वो अगर ताजनगरी में लगाए जाते तो लोगों को आबो हवा भी पता चलता रहता है कि किस तरीके से ताजनगरी की आबो हवा है। उसके बावजूद भी अगर प्रदूषण विभाग की बात करें तो प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण विभाग ने 100 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, लेकिन उस 100 करोड़ की जो रकम है वो उस खर्चे से कोई भी यहाँ कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा कि प्रदूषण विभाग किस तरीके से इस प्रदूषण को रोकने में कामयाब हो रहा है। लेकिन प्रशासन है वो प्रशासन लगातार अपनी स्तर पर, जैसे नगर निगम के लोग हैं वो लगातार वाटर सॉकिंग करा है, चाहे रात का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे दोपहर का समय हो, लगातार जो धूल भरे इलाके हैं वहां पर वाटर सॉकिंग कराई जा रही है। जो मेडिकल जो कॉलेज है या जिला अस्पताल है वहाँ उसके आसपास धूल उड़ती है उस पर वाटर सॉकिंग कराई जा रही है। तो निश्चित तौर पर प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन तो एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन प्रदूषण विभाग है वो अभी सोया हुआ है। इमारत फतेहपुर सीकरी ऐसी इमारत है, यहाँ पर लगातार ताजनगरी फतेहपुर सीकरी को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। उनको राहत पहुंचाने के लिए भी लगातार जो प्रशासन है वो एक्टिव हो गया। होटल स्वामियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश दे रहा है, उनके साथ बैठक कर रहा है, उनको बता रहा है कि विदेश के अगर डेलीगेशन कोई ताज दीदार के लिए आता है तो उसको किस तरीके से जैसे फॉग हटता है उसके बाद ही उनको दीदार कराने के लिए ले जाए। Indeed, a lot of, as you stated, relief measures are being taken by the administration, but also let's gain a perspective of what's taking place in Rajasthan at the moment. Joining us live from Jaipur is my colleague Vishnu Sharma. You've been waiting rather patiently with us for a very long time. How is the situation like in Jaipur? Could you show our viewers around a little bit? देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए तो पूरा राजस्थान इस प्रदूषण की चपेट में नहीं है, लेकिन राजस्थान के कुछ जिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, ऐसे जो इलाके हैं वहां पर लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहाँ लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 300 के पार पहुंच गया है, जिससे वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो इलाके हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल जो चिकित्सा विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें तमाम जो प्रदेश की सीएमएचओस हैं उनको कहा गया है कि जो सांस के मरीज जो आ रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके लिए अलग से इंतजाम किए जाएं। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के कुछ ही इलाके ऐसे हैं जिनमें प्रदूषण का असर है। पूरे राजस्थान में इस जो प्रदूषण का खतरा है वो नहीं मंडरा रहा है, लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर और जो इस तरह के जो जिले हैं वहाँ के आसपास के इलाकों में लगातार जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो सांस के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल जिस तरह से चिकित्सा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए हैं उसमें गाइडलाइन में लिखा गया है कि तमाम जो हॉस्पिटल्स में जो जरूरी इंतजाम है वो किए जाएं, सांस के जो मरीज हैं उनके इलाज प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाए और जो सांस की जिन लोगों को तकलीफ है उनको रेगुलर चेकअप के लिए जाने की सलाह दी गई है। जी Indeed, and with that I would like to thank you for joining us on the broadcast, as well as my other colleagues who've joined us from across the national capital and regions around it to give our viewers a comprehensive picture of what is taking place on ground. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.